So let's start with the lecture number 2 in vectors. So lecture number 1 में हम लोगों ने देखा था कि व्हाट आर वेक्टर्स, क्या ज़रूरत पड़ गई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करने की जिसमें मुझे डायरेक्शन भी चाहिए एंड आई नीड मैग्नीट्यूड ऑल्सो. That we have seen that what we call a vector, but there is one more requirement to say any physical quantity is a vector कि वो follow करे law of parallelogram of addition rather than the ordinary rules of algebra. because हमने देखा कि लास्ट लेक्चर में कि कई फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जैसे कि करंट, प्रेशर, उनके पास डायरेक्शन भी है और उनके पास मैग्नीट्यूड भी है, बट दे फॉलो ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ algebra. But to get any desired effect in certain physical quantity we need magnitude along with direction, and along with that they follow a law of parallelogram of addition. So those quantities we call it a vector. फिर हमने देखा the difference between scalar and vector, क्या differences हैं scalar और vector में. Then we move on to see how we represent a vector. Then we have seen the equality in vector. After that we have seen the triangular law of addition of vector. Then we have seen parallelogram law of addition. Then we move on to see the polygon law. It is just an extension of triangle law only. Then we move on to see some properties of vector. We have seen how we calculate addition within the analytical method, and we have seen the subtraction of vector. Subtraction is nothing but we multiply the vector with -1 and it just changes the direction and we adjust the angle accordingly. Then we get the resultant of a minus b, that is subtraction. So that's all we have seen in the last lecture. Last lecture में I think we have got confused in commutative and distributive property of vector. ठीक है, बता दिया था क्या है, but I forget to give you the pictorial representation of that, so I'll just give it to you. Suppose commutative क्या होता है, it's the order, किसी भी order में. So I can do commutative property, I can do a plus b or b plus a, किसी भी order में मैं करूँ I'll get the same result, and that is what the commutative property. So इसका देखते हैं. अगर ये मेरा a है and this is my b and this is my resultant, ठीक है. This is my resultant r, this is my a b, this is my a plus b, ठीक है. So this is my resultant r. I can also represent it in a manner, I can parallelly shift this b from here to here, from here to here I can parallelly, and I can parallelly shift a to here to here. So this is also a, this is also b. Now here what I am doing, b, here I am doing b plus a, that is also giving me this resultant only. Okay, so that is a commutative property. Order important नहीं है. Second was the distributive property, जिसमें कि मैंने किया था a b plus c is equals to a plus b plus c. So किस तरीके से मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ that also not important. तो इसमें we'll see a ये है, suppose मेरा b ये है and c मेरा ये है, ठीक है. तो I can do a plus b मैंने क्या किया, ये आ गया. पहले हम रिजल्टेंट देख लेते हैं. ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c. इन तीनों का रिजल्टेंट हमने देखा था कैसे करते हैं हम, स्टार्ट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड द टिप ऑफ लास्ट वेक्टर, ठीक है. ये मेरा रिजल्टेंट आ गया. नाउ आई हैव टू डू a प्लस, सपोज मैंने करना है a प्लस b को पहले ब्रैकेट में, देन c को. सो a प्लस b का पहले मैंने रिजल्टेंट लिया एंड देन this is my resultant, and then I add c in this, I'll get the same this r vector. Second में मैंने क्या किया कि instead of this what I have done, a b c, अब मैंने क्या किया, मैंने b और c का पहले किया, b और c को पहले मैंने ऐड किया, this I've got it as a resultant, and now I add this a and this r, and I got this final resultant r. Okay, this is r dash, I got the final result. किसी भी तरीके से आप कंबाइन कर लें, you get the same result, and that's what this pictorial representation we missed in the last lecture, so that's why I presented it here. So now this lecture is we are going to start lecture number 2. lecture number 2 में हम लोग cover करेंगे unit vectors. We are going to see what are unit vectors and why there is a requirement of unit vector. Then we are going to see component of vector. अगर एक vector है, if we have to
सी द कंपोनेंट इफ वी हैव डिफाइंड सर्टेन एक्सेस, तो उस एक्सेस के अलॉन्ग उस वेक्टर को किस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी इन द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. देन वी आर गोइंग टू सी डायरेक्शन कोसाइन, कि अगर मेरे को एक स्पेस में 3D स्पेस में एक पॉइंट दे रखा है, तो हाउ आई एम गोइंग टू टेक the angle from the 3D axis, तीनों axis से, and how those angles are related, that we are going to see in direction cosines. Then we are going to see position vector and the displacement vector. So these two vectors these two vectors are the basis of kinematics. So this we are going to cover. Position vector देखेंगे कि किसी point की in a 3D plane, उस पॉइंट को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, हाउ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दैट. और अगर वो पॉइंट वन पोजीशन से इफ इट्स मूविंग टू सेकंड पोजीशन, एंड देन वी हैव टू सी द डिस्प्लेसमेंट. सो वील सी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दैट. देन वी आर गोइंग टू सी द लैमिस थ्योरम, कि इन दैट वी सी कि इफ 3 vectors are 0, if 3 vectors are in equilibrium, so how their angles and their magnitudes are related. So that we are going to see in Lami's theorem. And in the last we are going to see product of 2 vectors, and in that product of 2 vectors we are having 2 set of products. One is scalar product, one is cross product. So in today's lecture we are trying to cover the scalar product. Cross product we are going to cover up in the next lecture. Okay, so let us begin. So let us begin with the unit vector. So unit vector क्या होता है? Unit vector is to specify direction only, and we are not interested in the magnitude. Suppose मेरे पास certain instances है, this A vector is there and this is my B vector. So मेरे को बोला जा रहा है कि मेरे को A का कंपोनेंट निकालना है B की डायरेक्शन में बस. ओके, A का कंपोनेंट मुझे B की डायरेक्शन में चाहिए, दैट्स इट. सो आई नीड 2 थिंग्स. अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ मेरे को A का कंपोनेंट B की डायरेक्शन में चाहिए, तो आई नीड 2 थिंग्स, कि A की जो मैग्नीट्यूड होगा along the direction, A का जो मैग्नीट्यूड होगा along the direction of B, और B की डायरेक्शन. ठीक है. सो अगर मेरे को बोला जाए A का कंपोनेंट B की डायरेक्शन में क्या होगा, A का मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट along B, ठीक है, और प्लस आई नीड डायरेक्शन ऑफ B, ठीक है, डायरेक्शन. तो यहाँ पे मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ B की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, आई जस्ट नीड द डायरेक्शन ऑफ B. आई जस्ट माई प्रॉब्लम विल बी सॉल्व इफ आई गेट द डायरेक्शन ऑफ B. सो यूनिट वेक्टर आर दोज वेक्टर वेयर मैग्नीट्यूड उसका 1 होता है, एंड वी गेट द we only interested in the direction, and we get the direction only. ठीक है. और as we know कि वेक्टर जो होता है, वेक्टर इज कंसिस्टिंग ऑफ both the things magnitude, which is mod A, and it is direction also. Okay, किस डायरेक्शन में. ठीक है. This we are having both component in our vector, but if we just need the direction, what we have to do, we have to divide the magnitude of that vector with the vector, we'll get the direction. So we'll see okay, how I'll get the unit vector. Suppose A vector दे रखा है जिसमें both magnitude and direction है. डायरेक्शन हम लोग किसी भी वेक्टर की डिफाइन करते हैं, इफ़ यू पुट अ कैप ऑन दैट, A cap, B cap, so it is giving me only the direction towards A and only the direction towards B. We are not interested in magnitude, only the direction, and magnitude of A is this. We do it with the mod. So now if I only interested in the direction of A, I'm not interested in the direction. So पहले मैं वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को किस तरीके से लिख सकता हूँ, उसका मॉड और उसका डायरेक्शन. ठीक है, उसका मॉड कितना मैग्नीट्यूड है और उसका डायरेक्शन कितना है. नाउ मैंने क्या किया, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द डायरेक्शन, आई एम ओनली इंटरेस्टेड. और डायरेक्शन मैंने कैसे लिख दिया, वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मॉड. सो दिस इज माय unit vector in the direction of A, unit vector in the direction of A. That's how we do. We divide a vector by its magnitude and we get the direction. We get the direction of that vector which is now a unit vector, and the direction we have got of that vector. Okay. So suppose another case we are going to say, we are having 3 axes x, y and z. ठीक है. सो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इफ़ आई डिफाइन अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, आई डिफाइन इट एज आई वेक्टर. और मैं वाई की डायरेक्शन में आई डिफाइन, अगर मेरे को वाई की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है, मैं उसको जे डिफाइन करता हूँ. और अगर जेड की डायरेक्शन में मेरे को यूनिट वेक्टर, आई डिफाइन इट एज अ के. सो आई जे के आर माई यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द एक्सिस एक्स, वाई एंड जेड. ओके.
So now suppose I'm having this point A in xy plane के अंदर एक point है, this xy plane z0 है इसका, so it is within the xy plane only, ठीक है. xy plane में मेरा एक point है A. Now I wanted to know कि इसके, now I wanted to know this point, in this point इसके I need to know कि along, I need to know the this vector OA vector निकालना है मेरे को. OA vector निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि I'll see कि it is the magnitude. So this is my OA vector, ये direction है and this is my magnitude. So OA vector निकलेगा मेरा, suppose this is 3i, this is 3 times along the I vector, this is suppose the magnitude is 3. So if I say this point is 3 comma, this point is 3 comma 2, okay. So this is 3 side along the I vector is my direction along the x-axis, and plus 2 side along the j vector, 3 side along the y vector, and this is my resultant, which is 3i plus 2j, ठीक है. This is my resultant. So now it is a vector which is representing, which is giving me the direction also, and which is and magnitude also, okay. So this is how a vector is defined in I, j and k. So component of vector, we have already seen it there, but I'll just give you another illustration. So suppose component of vector कैसे निकालते हैं. Component of vector consists कि अगर मेरे पास 2D vector है, so I'll be having 2 component of that. So suppose मेरे पास ये east direction है, north direction है, so a particle move from here to here. So अगर मेरे को उसका component निकालना है, तो I'll see कि this particle की position मेरे को निकालनी है, इस particle का vector निकालना है. So I'll see कि वो east direction में कितना move किया plus इस डायरेक्शन में कितना मूव किया, तो उसका फाइनल रिजल्टेंट मेरे पास ये आ रहा है. सो आई डायरेक्शन में इट मूव x टाइम्स एंड j डायरेक्शन में इट मूव्स y टाइम्स, j डायरेक्शन में इट मूव्स y टाइम्स, ठीक है. सो इट इज़ नाउ द इन्फ्लुएंस ऑफ टू डायरेक्शन, ईस्ट एंड नॉर्थ. पहले वो ईस्ट में गया फिर नॉर्थ में गया, एंड इट गिव मी द फाइनल रिजल्टेंट के वो कहाँ पे है, ठीक है. सो इट इज़ नाउ a 2D vector which is giving me 1 dimension in x and 1 dimension in y, okay. So this is mostly used when we are going to study the 2D motion in kinematics. So this set of component of vector will be very much required there, okay. So this r is a component, r is a influence with the influence of 2 vector, okay. Now we'll see the direction. सपोज मेरे पास एक यूनिट वेक्टर दे रखा है, दिस इज माई यूनिट वेक्टर, ओके. दिस इज माई यूनिट वेक्टर आर मेरे पास यूनिट वेक्टर दे रखा है. आई एम ओनली इंटरेस्टेड कि इसकी डायरेक्शन कितनी है, इसका डायरेक्शन क्या है, इस यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर क्या है इस डायरेक्शन का, ठीक है. देन आई एम इंटरेस्टेड इसका यूनिट वेक्टर क्या है, इसका यूनिट वेक्टर क्या है, इसका यूनिट वेक्टर क्या है. यूनिट वेक्टर आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द डायरेक्शन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि कितना उसका मैग्नीट्यूड है. तो वो कैसे देखेंगे. सपोज ये आर वेक्टर है एंड दिस आर वेक्टर, I'll just do the component of this r vector. This is making an angle theta, positive theta with the x-axis. So I'll make the component of this vector. So पहले ये r cos theta x direction में गया, तो r cos theta I, then it goes r sin theta in the y direction. So r sin theta j, and this is now my triangle law के according अगर मैं करूँगा, so this is my r. So r has become r cos theta, r sin theta, ठीक है. Now I need a unit vector. What I will do, I'll divide it by its magnitude. आर मेरे पास वेक्टर आ गया, आई डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, आर कैंसिल हो जाएगा ये वाला, देन आई गेट ओनली द डायरेक्शन. सो ये डायरेक्शन मेरे पास आ गई, कॉस थीटा आई साइन थीटा जे, ओके. दिस डायरेक्शन आई हैव गॉट इट. नाउ सेम वे इफ आई वांटेड टू नो दिस डायरेक्शन, सेम वे आई ब्रेक डाउन इनटू इट्स कंपोनेंट. पहले ये इधर मूव किया माइनस आर साइन थीटा, देन इट मूव हेयर प्लस सॉरी इधर मूव किया माइनस आर कॉस थीटा, देन इधर मूव किया आर साइन थीटा, ठीक है. सो माइनस आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा. If I divide it by its magnitude r, so I've got this direction. Same way पहले इधर minus r cos theta move किया, then minus sin r sin theta move किया, and I divided by r and I've got this direction minus cos theta I minus sin theta j. अगर मेरे को इस वेक्टर की केवल डायरेक्शन चाहिए, तो ये वेक्टर कैसे मूव किया, इट मूव्ड फर्स्ट इन प्लस I direction, so that is r cos theta, then minus, so r cos theta I plus r sin theta j, and I've got this direction. This is my r, so and I divide it by I divide the vector by magnitude, and I've got this answer, okay. Cos theta I minus sin theta j. So this is how we got the direction only. And if you are interested only in the direction, so we define the unit vector for this. Now we'll see the axis, how if we rotate the axis, and how the components got changed if we rotate the axis, okay. So axis and all are all independent thing. It depends के
एक्सेस चेंज करने पे हाउ कैन वी ईजिली सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है. सो दिस एक्सेस चेंजेस व्हेनेवर देयर इज एन इंक्लाइन प्लेन के जैसे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे लाइक दिस in Newton law of motion or kinematics में if I need a projectile motion like this. So in those cases it is better to break down the component along break down the component in this manner, so that our in this manner along the inclined plane and vertical to inclined plane, so that our problem solving will be easier. So उस cases में क्या होता है, let's see. Suppose this is my vector, this is my x and this is my y. ये पहले मैंने एक्सेस ले रखा है and this is my vector. Okay, so now component of this vector is a cos theta x direction में and a sin theta y direction में, and final जो vector बनेगा वो मेरा बनेगा a cos theta i direction में plus a sin theta j direction में. ये मेरा component बन गया, ठीक है. Now if I rotate this axis, if I make this axis is this x and this is my y, ठीक है, this is my x and this is my y. So two things will be here. Theta got changed, but the distance from the origin is the same. Distance from the origin is same. So, okay, इसकी बस x और y के component change हो जाएंगे, but distance from the origin will be the same again. Okay, so distance from the origin मुझे पता है. What is the distance from the origin? अगर मेरे को coordinate पता है तो x square plus y square का under root. This is my distance from the origin. अगर x y उसके coordinate है, बस coordinate change हो जाएंगे, but again कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, बट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज ऑलवेज बी सेम. नाउ अब इसका कंपोनेंट क्या होगा, इसका कंपोनेंट अगर मेरे को इस एक्स ऑन वाई में चाहिए, सो इट मूव्स हेयर फर्स्ट एंड देन हेयर. सो यहाँ पे इसके कंपोनेंट चेंज हो गए एक्स और वाई के, ठीक है. सो रोटेट करने पे कंपोनेंट चेंज हो जाते हैं थीटा, बिकॉज द थीटा इज चेंजिंग बट मैग्नीट्यूड फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम. अगेन वी जस्ट फॉलो द राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, राइट हैंड कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है कि एक्स है, कोई भी एक्स है, उसके आई हैव टू रोटेट, आई टेक ऑल माई फिंगर्स अलॉन्ग द एक्स डायरेक्शन एंड आई रोटेट माई फिंगर 90 डिग्री. जिस डायरेक्शन में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी उसी डायरेक्शन में वाई होगा 90 डिग्री. सो सपोज दिस इज माई एक्स, आई रोटेट माई फिंगर 90 डिग्री towards anti-clockwise direction, so this will be my y. अगर मेरा ये x है तो यहाँ से मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव करूँगा, this will be my y. Okay, so now again if I make the angle theta, अगर मैं एंगल सेम रखूँ but I just rotated the axis, यहाँ पे एंगल मेरा सेम है, तो now this will be my a cos theta. पहले मेरा a cos theta ये होता था, now this will be my a cos theta. Okay, now this will be my a cos theta. Same way if I rotate the axis like this, so along the axis मेरा जो component होगा that is जो एंगल होगा a cos theta, vertical to that is my a sin theta. Same way अगर मेरा ये, अगर my x axis is this, y axis is this is my vector, so along if I take the theta from positive x axis, so along the direction of x axis is my a cos theta, vertical to that is a sin theta. So this application we have seen, I've told you कि जब भी हमारे पास inclined plane के question होंगे, we have to resolve the vector in two components along the direction of incline and vertical to incline. So in this direction we try to solve the problems. So here we'll see one illustration. So suppose this block is there on the inclined plane, ठीक है, this block is there. So इस block पे जो force लग रही होगी mg, gravity की वजह से, that is mg this side. So I need to break down this mg into components along this direction. So this I'll take x and y, rather than this x and y I'll take this as x and y. So this is my x and this is my y. Okay, I'll take this as x and y. So now this is my mg. Now I have to break it down to this direction and this direction. Okay, so this is my angle theta. How this is my angle theta? This is my theta. This will become my 90 minus theta, and this overall is 90, so this will become theta. Okay, this has become theta. So now this is my theta, and I know mg along this direction, I'll write it down mg cos theta, and vertical to this is mg sin theta. Okay, so I have break down my mg into direction along the incline and vertical to the incline. Okay, so that's how we resolve the vectors as per the axis which is convenient to us. Okay, this is not like axis is defined only this axis, x or y axis आपने define कर दे. You can define any axis as per your convenience, so but as per your convenience to solve the problems in a most comfortable manner. Okay, but you have to resolve the vector along those axes only. Okay,
next we'll move on to some questions we'll see. So here I have been given a vector minus 2i minus 2j. I wanted to know the magnitude and direction of this vector. So first I'll see that it is move minus 2i, so it will move minus 2, this is plus I, this is minus, this is plus I, and this will be minus I. So first it will move in the minus I direction, minus 2 times, then it is say it is moved in minus j direction. So this is my movement and this is my resultant vector. So this is my vector, r vector. R vector कैसे होगा? This is my r vector. Now I have to find out its magnitude. Magnitude क्या है? It is making 90-degree angle. It's 90. I'll apply the Pythagoras theorem. So this is my 2. So this magnitude will be 2 square plus 2 square. This will be my magnitude. Direction कैसे होगी? I always take the direction from the plus x axis. This direction. तो पहले मैं थीटा निकाल लूँगा. ये थीटा will be 2/2. ठीक है. This is 2 and this is also 2. Theta is 45 degree. Now this is also 45 degree. Now this is 180 plus 45 will be my 225. So अगर मेरे को plus axis से अगर मेरे को एंगल लेना है, this will be 225 degree. Okay, so this is my direction and this is my magnitude of this vector. Now मेरे को एक क्वेश्चन दिया गया है कि man rows a boat with a speed of 18 km/h in the northwest direction. Okay, so direction हो गई है मेरी north, east, south and west. और north west जब भी मैं बोलता हूँ, it is north of west with 45 degree. अगर मेरे को कोई एंगल नहीं दे रखा तो I'll take north of west with 45 degree. ओके, सो मेरे को दे रखा है 18 km/h से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड शोर लाइन मेक्स एन एंगल 15 डिग्री विद द साउथ ऑफ वेस्ट. यहाँ पे मेरे को एंगल दे रखा है साउथ ऑफ वेस्ट. सो वेस्ट ये है, साउथ ऑफ वेस्ट मीन्स दिस साइड, नॉर्थ ऑफ वेस्ट इज दिस साइड. ओके, नॉर्थ ऑफ वेस्ट इज दिस साइड, साउथ ऑफ वेस्ट इज दिस साइड. साउथ ऑफ वेस्ट मेरे को दे रखा है शोर लाइन, दिस इज 15 डिग्री मेकिंग एन एंगल 15 डिग्री. ठीक है, दिस इज मेकिंग एन एंगल 15 डिग्री. और मेरे को अलग दूसरी चीज़ दे रखी है कि मैन रोज अ बोट विद स्पीड 18 km/h इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. सो दिस इज माई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, एंड व्हेन द एंगल इज नॉट गिवन आई कंसिडर इट 45 डिग्री. तो ठीक है, दिस इज 45 डिग्री, दिस इज माई 15 डिग्री इट्स बिन गिवन. ओके, साउथ ऑफ वेस्ट. नाउ मेरे को मेरे से पूछा गया है कि वेलोसिटी के मेरे को कंपोनेंट बताओ along the direction of shoreline and perpendicular to the direction of shoreline. So along the direction of shoreline we'll do, so this is my 18, this is 14, this is 15, so 45 plus 15 is 60 degree. So मेरा along the direction हो गया 18 cos 60 and vertical हो गया मेरा 18 sin 60. Okay, that's how we do the components. यहाँ पे देखा हमने axis change कर लिया, rather than going with the conventional axis we change the axis, and with the change of axis we define the component accordingly. बिकॉज थीटा एंगल चेंज हो गया, राइट. अगर मेरे को इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए होते हैं तो इट विल बी 18 cos 45 डिग्री एंड 18 sin 45 डिग्री. अगर मेरे को एक्स और वाई मेरा कन्वेंशनल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट होता. अब मेरे को शोर लाइन के लिए चाहिए था, सो आई हैव गॉट दिस कंपोनेंट्स. नेक्स्ट सो नेक्स्ट वी आर हैविंग अनदर क्वेश्चन. सो मेरे को क्वेश्चन दे रखा है, ए दे रखा है 3i + 4j, बी दे रखा है, ठीक है, एंड आई बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट अ वेक्टर सी विच इज़ हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ए. ठीक है, मेरे को क्या वेक्टर निकालना है? ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है. मेरे को निकालना है कि सी वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड जो हो वो बी के बराबर हो और डायरेक्शन मेरी ए के बराबर हो. ए डायरेक्शन मेरी अलॉन्ग द साइड ऑफ ए. तो अलॉन्ग द साइड ऑफ ए की डायरेक्शन निकालने के लिए मैं क्या करूँगा? ठीक है, ए की डायरेक्शन मेरी ये हो गई, ए क्या होगी मेरी? ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर. ठीक है, मेरे को ए वेक्टर दे रखा है, आई डिवाइड दिस वेक्टर बाय इट्स मॉड्यूलस, सो इट विल बी दिस वेक्टर डिवाइड बाय 5, क्योंकि इन दोनों का मैग्नीट्यूड 5 आएगा. दिस वेक्टर डिवाइड बाय 5 इज गिविंग मी द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलॉन्ग ए. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ आई एम गोइंग टू टेक, आई विल टेक the magnitude of b is 7 square plus 24 whole square under root, so this is giving me 25. So this has this is my magnitude, this is my direction. I multiply by this and I'll get this desired vector. Okay, so कभी भी मेरे को डायरेक्शन चाहिए होती है किसी भी उसमें और किसी भी वेक्टर साइड में, so I'll take the unit vector of that direction along that side. Okay, this is clear. So now we'll see another question. यहाँ पे मेरे को दे रखा है कि कार की स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड से कार मूव कर रही है. ठीक है,
नाउ मेरे को वेलोसिटी वेक्टर बताना है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में। जब भी मैंने बताया कि आपको नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट दिया होगा, सो आपको 45 डिग्री एंगल कंसीडर करना है इफ़ द एंगल इज़ नॉट बीन मेंशन। यहाँ पे मेरा एंगल है 45 डिग्री। ओके, सो नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट क्या है, ईस्ट ही हो गया, नॉर्थ ऑफ ईस्ट ही हो गया। साउथ ईस्ट क्या है, साउथ ऑफ ईस्ट दिस। नाउ नॉर्थ ऑफ वेस्ट मीन्स कि वेस्ट के नॉर्थ में दिस, एंड साउथ ऑफ वेस्ट इज साउथ के वेस्ट में। सो दिस इज, नाउ मेरे को वेलोसिटी की डायरेक्शन, वेलोसिटी मेरे को इस डायरेक्शन, वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में बताना है, इसमें बताना है, इसमें बताना है, इसमें बताना है। तो मेरे पास मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, आई जस्ट नीड द डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में क्या, इस ये किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, आई जस्ट नीड द डायरेक्शन। सो ये मैग्नीट्यूड कैसे बनेगा, दिस इज माई मूविंग टूवर्ड्स हेयर, ठीक है, प्लस दिस प्लस दिस। तो ये क्या हो गया इसका, ये वेक्टर कैसे बनेगा, मैं इस डायरेक्शन में मूव किया x एंड इस डायरेक्शन में मूव किया y। तो ये डायरेक्शन में x जो मूव किया ये क्या हो गया, वो इसका x कंपोनेंट, वो क्या हो गया r cos 45 डिग्री i प्लस r sin 45 डिग्री j। नाउ आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन द direction, I don't need the magnitude, I divide the whole things by r, so r will get cancelled. So it is going to give me the direction sin 45 degree i and cos 45 degree I and cos sin 45 degree j. It is giving me the direction of northeast. सेम वे मेरे को नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन चाहिए, दिस इज माई नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। पहले मैं माइनस में गया, माइनस कॉस देन प्लस साइन, सो माइनस कॉस 45 प्लस साइन। अगर मैं साउथ वेस्ट में गया तो मैं माइनस, पहले माइनस कॉस में माइनस आई में गया तो माइनस कॉस 45, देन माइनस, देन फर्दर माइनस में गया, दिस इज माई माइनस कॉस 45 एंड माइनस साइन 45। नाउ मैं गया, अगर सॉरी दिस इज नाउ मैं गया साउथ ऑफ वेस्ट के बाद साउथ ऑफ ईस्ट, दिस वन। तो पहले मैं प्लस एक्स किया देन माइनस वाई गया, सो प्लस एक्स इज माई कॉस ऑफ 45 डिग्री एंड माइनस इज माइनस साइन ऑफ 45 डिग्री। आई हैव गॉट दिस। सो मेरे पास चारों डायरेक्शन आ गई। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, वेक्टर निकालने के लिए इस डायरेक्शन में आई विल डू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ ईस्ट की मेरी डायरेक्शन ये आ गई। आई पुट द डायरेक्शन हेयर cos 45 i प्लस साइन 45 j एंड मैग्नीट्यूड मेरे पास 10 दे रखा है। सो henceforth I'll get my answer. Okay, so another question मेरे को जी दिया गया, उसमें मेरे को बोला गया C when added with A and B give you the unit vector which is along the y axis. Okay, so now A ये है मेरा वेक्टर, B ये वेक्टर है एंड C वेक्टर मेरे को निकालना है। अगर मैं मेरे को पूछा गया है C वेक्टर निकालना है और मैं अगर तीनों को ऐड कर दूँ, सो आई विल गेट द फाइनल रिजल्ट इन y axis, ठीक है, in y axis that is final result is in j only. So now I'll add all three numbers x, y and c I don't know, I'll just keep it। a और b को ऐड किया मैंने इन दोनों को ऐड किया, सिंपल एडिशन करके मेरे पास ये आंसर आया प्लस c, ठीक है, इज इक्वल्स टू j। नाउ दिस वेक्टर विल गेट 0 या, सो c वेक्टर कैसे आएगा, नॉट 0, c वेक्टर कैसे आएगा, आई एम हैविंग दिस, सो c वेक्टर आएगा -5i, इसको मैं इधर ले गया, j is 2j and my k is 4k is, I'll take it here -4k, so this will be my c vector. Okay, now we see the next topic is my direction cosines. Next topic is direction cosines. So direction cosines is basically the cosines of the angle alpha, beta and gamma a vector makes with x, y and z axis. So मेरे पास एक 3D space में, suppose एक 3D space है, this is my 3D space, this is my x, this is my y and this is my z, ठीक है, ये x, y, z है, 3D space है, यहाँ पे एक मेरा वेक्टर है, ठीक है। Now here is my vector, this is my vector in 3D space, ठीक है। Now मेरे को cosine of angle, कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन कह रहे हैं कि मेरा जो एंगल दिस एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस से बन रहा है कि द कोसाइन एंगल ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा निकालना है, एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन कोसाइन ऑफ एक्सिस विद एक्स वाई जेड, सो दैट रिलेशन दैट वी आर गोइंग टू सी। सो मेरे को दिया गया है कि it is making an angle alpha with x, so this is my x direction, so it is making an alpha with x, positive direction से देखेंगे, this is alpha, it is making beta with y and it is making gamma here, ठीक है। so now अगर मैं इसका b का प्रोजेक्शन लूँगा x पे, what will be the projection is of this vector is r cos
अल्फ़ा, ठीक है। अगर मैं इस b का प्रोजेक्शन में y पे लूँगा दैट विल बी r cos बीटा। अगर मैं इसका प्रोजेक्शन इसके z एक्सिस z पे लूँगा तो दैट विल बी r cos गामा। सो अपने अपने एक्सिस पे अगर मैं इसका लूँगा सो दिस विल बी इसका प्रोजेक्शन लूँगा, दिस वेक्टर इज देयर, सो इसका दिस विल बी माई cos थीटा एंड हेयर इट विल बी माई sin थीटा, ठीक है। सेम वे अगर मैं इसके डायरेक्शन में लूँगा दिस विल बी माई r cos गामा, जो इनके बीच में एंगल है r cos बीटा, एंड दिस विल बी माई r sin गामा। सो तीनों का कंपोनेंट along their axis will be r cos alpha, r cos beta and r cos gamma. Now we'll see the relationship between them. So that is what it's been said कि एक r वेक्टर है 3D एक्सिस में, उसका x के साथ एंगल अल्फ़ा, y के साथ बीटा एंड z के साथ गामा। r वेक्टर है उसका that is in the rectangular coordinate it is showing with the x y z and z, ठीक है। एक्स वाई जेड, एक्स डायरेक्शन में ये है, वाई डायरेक्शन में उसकी मैग्नीट्यूड है, जेड डायरेक्शन में, दैट इज शोइंग इन दिस वे। नाउ माई मैग्नीट्यूड आर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ कॉस अल्फा कितना हो गया, कॉस अल्फा इज माई वी हैव सीन कि उसका एक्स कंपोनेंट इस वेक्टर का अगर मैं देखूँ एक्स पे कंपोनेंट कितना आएगा, आर कॉस अल्फा, ठीक है। सो एक्स कंपोनेंट इज माई आर कॉस अल्फा, अल्फा कॉस अल्फा आ जाएगा एक्स बाय आर। सेम वे कॉस बीटा कितना आ जाएगा, y by r and cos gamma will be z by r, ठीक है। Now I'll do the square of cos alpha, cos beta, cos gamma and this value is always 1 for any vector। किसी भी वेक्टर 3D वेक्टर को if you do the cos square alpha, cos square beta, cos square gamma, this will be always true, always 1, ठीक है। कोई भी वेक्टर ले लो आप, इस डायरेक्शन में वेक्टर ले लो, उसका कंपोनेंट यू विल ब्रेक इट डाउन ऑन इट्स, उसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट ले लो, उसका वाई एक्सिस में कंपोनेंट ले लो, उसका जेड एक्सिस पे कंपोनेंट ले लो, ठीक है। उसके अल्फ़ा एक्स एक्सिस के साथ अल्फ़ा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा, उसका तीनों का कंपोनेंट ले लो एंड आफ्टर टेकिंग दैट कंपोनेंट यू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा वैल्यू निकाल के इफ़ यू स्क्वायर इट एंड इट विल ऑलवेज गिव यू द रिजल्ट कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि मेरे को एक वेक्टर दे रखा है, this is my east direction, this is my north direction and this is my height vertical direction, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को कंपोनेंट दे रखा है कि अल्फ़ा इट इज़ मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री एंड दिस फ्रॉम द हाइट फ्रॉम द वर्टिकल इट इज़ मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, दैट इज़ गामा। नाउ वेलोसिटी मेरी 20 है। नाउ आई बीन आस्क्ड द वेलोसिटी वेक्टर में से पूछा गया है, ठीक है। along in rectangular coordinates, velocity vector in rectangular coordinates क्या होगा मेरे, एक्स आई, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हो गए एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है ये। बट यहाँ पे मेरे को वेलोसिटी का दिया है तो वेलोसिटी along the direction of I plus velocity along the direction of J plus velocity along the direction of K, that is my rectangular coordinate of y axis। तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए होगा कि अगर मेरे को x चाहिए तो उसका velocity ये जो है इसका जो रिजल्टेंट है इसका cos थीटा, cos of that this alpha is going to give me the x coordinate of that velocity। y coordinate के लिए मेरे को y के साथ कितना एंगल है उसका कॉस अल्फ़ा करूँगा, और z के लिए मेरे को z के साथ कितना एंगल है उसका कॉस अल्फ़ा करूँगा, कॉस गामा करूँगा, तो आई गेट द z डायरेक्शन। अल्फ़ा दे रखा है, गामा दे रखा है, सो आई नो द आइडेंटिटी दिस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ से मैंने कॉस बीटा निकाल लूँगा बिकॉज कॉस बीटा इज़ नॉट गिवन टू मी, ये दोनों दे रखे हैं। कॉस बीटा आ जाएगा तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट कितना आएगा, जैसे मैंने बताया v कॉस अल्फ़ा दैट इज़ माई आई, v sin beta, v cos beta is my j and v cos gamma is my k, so that is going to give me the rectangular coordinate in x, y and z axis, okay। So that's the application of direction cosines. Now we'll move on to the position vector. So position vector is the position of a particle in a space
with respect to origin, position of a particle in a space. So एक particle है, इसका position in a space with respect to origin. I can choose this also as an origin. This is my origin. So इसका position vector, this will be its position vector. If I change the origin, if this will be my origin. So now this is my position vector of this particle. So with respect to the origin, that is the position vector, and that depends on us कि हम किसको origin बना रहे हैं, क्या reference axis ले रहे हैं, that depends on us. But position vector will always be from the origin. That's, remember this thing, position vector will always be from the origin. So suppose this is my x-axis, y-axis and z-axis. So x और y के बीच में if I take anti-clockwise, x से move करेंगे 90 degree y-axis, ठीक है, ये x y z है, and this is my vector. अगर ये vector है, this is my x y z, this is the coordinate of this point. Now I have to find the position vector of this. Position vector निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, I need to know the origin, ठीक है, origin से मेरे को चाहिए होता है, origin से इसका कितना आ जाएगा, it is moving x, then it is moving y and it is moving z. So it is going to give me this r is my, ठीक है. तो इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए मैंने क्या किया, पहले x में मैं ट्रैवल किया, x एक्सिस में x टाइम्स, देन y एक्सिस, देन आई ट्रैवल इन y एक्सिस, पहले मैं x एक्सिस में गया, फिर y एक्सिस में गया, देन आई ट्रैवल इन द z एक्सिस. सो नाउ माय रिजल्टेंट इज दिस इज माय r वेक्टर, दिस इज माय पोजीशन वेक्टर, ठीक है. पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम लोग, x नॉट y नॉट, x नॉट डायरेक्शन में गया, y नॉट डायरेक्शन में गया, z नॉट. अब इसको मैं आई वांटेड टू राइट इट डाउन इनटू their angles. Suppose this is making an angle alpha here, this is making an angle beta here, and this is making an angle gamma here, and I know कि अगर इसका मैं कंपोनेंट x डायरेक्शन में लूँगा, that is going to give me the magnitude कि मैं x में कितना चला, तो r cos alpha is going to give me x में मैं कितना मूव किया, ठीक है. r cos beta if I am going to take, that is going to give me मैं y में कितना मूव किया, this y कितना y में मैं मूव किया. Then r cos gamma is going to give me कि मैं z में कितना मूव किया, this one, ठीक है. So तीनों के कंपोनेंट्स r cos alpha, r cos beta, r cos gamma, कितना मूव मैं i j के डायरेक्शन में किया, that is going to give me the position vector in a 3D space. That is going to give me, अगर मेरे पास एंगल है, that is going to give me the position vector in 3D space. क्लियर है. 3D space में कैसे कि x में कितना मूव किया, then y में कितना मूव किया, z में कितना मूव किया, and I'll take the opposite side resultant of that, जैसे कि हमने पॉलीगन लॉ में किया था. वी आर जस्ट फॉलोइंग दैट ओनली. दिस इज माय फाइनल रिजल्टेंट. अब मेरे को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, एंड आई हैव बीन गिवन द एंगल विद द एक्सिस, सो दिस इज माय एक्स वाई जेड वैल्यू. ओके, नाउ अगर मेरे पास 2D एक्सिस में दे रखा है बस, नॉट इन द 3D एक्सिस. ओके, आई नीड टू फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ दिस पॉइंट P. पोजिशन वेक्टर अगेन आई हैव टू डू इट विद द ओरिजिन. अगर मेरा ओरिजिन ये होगा, दिस इज माई ओरिजिन, सो माई पोजिशन वेक्टर विल बी दिस ऑन दिस. ओके, so it depends on the origin only. So now here it's my origin is this. So यहाँ पे क्या किया मैंने, x डायरेक्शन में मूव किया पहले, फिर y डायरेक्शन में मूव किया, एंड आई गॉट माई रिजल्टेंट दिस. सो मेरे को यही रिजल्टेंट चाहिए, ये वेक्टर चाहिए मेरे को, ठीक है. ये वेक्टर क्या हो गया, xi कितना हो गया, मेरे को r वैल्यू दे रखी है इसकी मैग्नीट्यूड, तो दैट इज r cos थीटा, इसका अलॉन्ग x डायरेक्शन, y डायरेक्शन में r sin थीटा. सो नाउ माई फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर, माई फाइनल वेक्टर इज r cos थीटा I and r sin theta j and r cos theta I, ठीक है. This is how I represent the position vector in 2D. Okay, r cos theta I, r sin theta j. I break it down into the component of x and y, and and that's how we are going to present in 2D. Again, I have told you value of position vector depends on the reference point. Suppose for instance this is my x and y axis, ठीक है, and this is my position vector. Now this is my x naught, as per this axis this is my position vector. So इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा x naught I plus y naught j. इसके अकॉर्डिंग this will be my position vector. अब मैं ये एक्सिस को चेंज कर दिया, I have changed this axis. Now this is my axis, x and y, ठीक है. या रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, बिकॉज इट इज़ नॉट लाइक आई एम नॉट रोटेटिंग ओनली. यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक्सेस चेंज करता है, अगर मैं एक्स और वाई एक करता, तो मेरा ओरिजिन सेम है, आई एम जस्ट रोटेटिंग इट, ठीक है. तो
आई एम जस्ट रोटेटिंग इट यहाँ पे, ठीक है. बट हेयर आई एम जस्ट मूविंग द एक्सेस ऑल्सो. दिस इज माई एक्सेस नाउ, वाई एंड एक्स. नाउ इसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा अब, ठीक है. इसका पोजिशन वेक्टर विल बी, दिस विल बी x1i and this will be y1j. So xi and yj. Okay, this will be now the position vector. Now the position vector got changed because I've changed my reference point from here this to here. O dash is my reference point, so my position vector got changed also. Now my new position vector will be x1i plus y1j. This will be my new position vector. पहले जो मेरे पोजिशन वेक्टर थे विच वॉज अकॉर्डिंग टू दिस एक्सेस, देन आई शिफ्टेड माई एक्सेस, माई ओरिजिन गॉट शिफ्टेड, दिस इज माई न्यू ओरिजिन. सो नाउ माई पोजिशन वेक्टर इज डिफरेंट. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. सो पोजिशन वेक्टर हमने देखा दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज के विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट देन ओरिजिन. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सम अदर पॉइंट देन ओरिजिन. इसको फर्दर देखते हैं. सपोज ये पॉइंट है P. इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है, दैट इज फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज x, y. मैं x डायरेक्शन में इतना मूव किया, y में इतना मूव किया, देन आई हैव गॉट दिस पोजीशन वेक्टर x, y. ठीक है, x, y मेरा पोजीशन वेक्टर आ गया. नाउ मेरे को पोजीशन वेक्टर दे रखा है Q का भी. आई हैव गॉट द Q को पोजीशन वेक्टर इज x2, y2. x2 डायरेक्शन में इतना मूव किया, y2 में इतना मूव किया, आई हैव गॉट दिस पोजीशन वेक्टर Q. Okay, I have got both the position vector. Position vector is with respect to origin. Now I wanted to know the displacement vector of Q with respect to P. Okay, so displacement vector हमेशा होता है which is some other vector, not the origin vector. Which is some other vector for not the origin vector. अब अगर suppose मेरे पास ये दिया होता R, ठीक है. If I wanted to know कि अब R का मेरे को x3, y3 पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है, एंड आई वांटेड टू नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू R, देन दिस विल बी माई रिजल्टेंट वेक्टर, दिस विल बी माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. अब यहाँ पे क्या है मेरा, P ये है, Q है. अब जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी दिस वेक्टर, दिस विल बी माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू P. सो वैल्यू ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P, नॉट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. सो पोजिशन ऑफ ए पॉइंट with respect to point other than the origin is what we call a displacement vector. और displacement vector कैसे होगा कि delta r is my x2 minus x1 I plus y2 minus y1 j. that is this formula only. ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ पे मूव किया, दैट मीन्स पहले ये x इधर मूव किया होगा एंड देन y इधर मूव किया होगा. अब x कितना मूव किया है, ये इधर से x1 minus x2, ये सॉरी x फाइनल वैल्यू क्या है, y2 minus y1, और यहाँ पे x2, दिस इज x2 x1 x2 x1 एंड y2 y1. सो y2 y1, सो यहाँ पे फाइनल मूव किया x2 minus x1 एंड y2 minus y1. सो दिस इज माई फाइनल डेल्टा r. दिस इज माई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. So position vector is always with respect to origin and displacement vector is always with respect to some other point rather than the origin. और उसको निकालते कैसे हम displacement vector, मेरे को P का position vector पता है, Q का position vector पता है. Now I wanted to know कि displacement vector of Q with respect to P, it is this vector. This vector will be x2 minus x1 जो final coordinate है minus initial coordinate, final coordinate minus initial coordinate. Get the value of displacement vector. ठीक है, we'll see one question here. So यहाँ पे बोल रहा है हमारा पहले I wanted to know कि मेरा resultant vector कितना है, किस डायरेक्शन में. ओके, पहले कह रहा है मेरा -10i चला. -10i चलने का मतलब पहले वो -x में चला 10i. ठीक है, फिर कह रहा है +10j चला. फिर वो कह रहा है +20k. +20k मीन्स के स्क्रीन से बाहर, मतलब कंसिडर विजुअलाइज इट के +20k z डायरेक्शन इज आउट ऑफ द स्क्रीन से बाहर आ रहा है. तो नाउ माई फाइनल रिजल्टेंट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर, उसका स्टार्टिंग पॉइंट से, देन गोइंग अप टू द लास्ट वेक्टर, दिस विल बी माई रिजल्टेंट वेक्टर. ओके, गोइंग अप टू द टिप ऑफ लास्ट वेक्टर, दिस विल बी माई रिजल्टेंट वेक्टर. दिस इज माई पोजिशन वेक्टर, सॉरी, दिस इज माई पोजिशन वेक्टर बिकॉज वी आर टेकिंग इट फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, now my Lami's theorem.
सो द लेमीज थ्योरम से कि रिजल्टेंट ऑफ तीन वेक्टर, अगर तीन वेक्टर का रिजल्टेंट जीरो है, a plus b plus c is 0, so these are in this direction, a plus b plus c is 0, then we display their magnitude and their angle in this manner. So magnitude of the vector is directly proportional to the sine angle between the other two vector. Okay, just remember this sine angle between the other two vector, and the relationship will be alpha by a by sine alpha, b by sine beta, c by sine gamma. These things we are going to use in Newton law of motion when we are going to when we are having the forces, three forces being given in equilibrium position. ठीक है, किसी पार्टिकल पे तीन फोर्सेस लग रही हैं एंड द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उस केसेस में वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय द लेमीज थ्योरम ऑल्सो. अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वी विल सी दैट, बट हियर ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर तीन वेक्टर हैं और तीनों का रिजल्टेंट अगर मेरा जीरो दे रखा है, ठीक है, तीन वेक्टर मतलब ए बी एंड सी, तो स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वेक्टर गोइंग टू द टिप, इट इज़ कमिंग जीरो ओनली, सो इट इज़ अ रिजल्टेंट इज जीरो वेक्टर. ठीक है, साइक्लिक पोजीशन में भी है तो इट इज़ अ जीरो वेक्टर. नाउ अगर जीरो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय उसका एंगल, सेकेंड साइड का मैग्नीट्यूड, सेकेंड साइड का उन सेकेंड साइड का मैग्नीट्यूड और इन दोनों साइड के बीच का एंगल. सी मैग्नीट्यूड मीन्स ए और बीच के बीच का एंगल साइन गामा. ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल, तो अगर ए मेरा मैग्नीट्यूड है तो एंगल बिटवीन बी एंड सी के बीच में एंगल. सो ए ये है, बी ये है, सी है. बी और सी के बीच में एंगल कितना हो गया? बी ए डायरेक्शन हो गई, सी ए डायरेक्शन हो गई. ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? बी ए हो गया. तो इन दोनों के बीच का एंगल, मिनिमम एंगल किस अल्फा, दिस इज द एंगल, नॉट दिस इज द एंगल, दिस इज नॉट द एंगल, दिस इज द एंगल. अगेन आई एम टेलिंग यू कि ए अगर मैं साइड ले रहा हूँ तो अपोजिट साइड का एंगल लेना है, द एंगल बिटवीन बी एंड सी. सो एंगल, so don't take this angle only, this is not the angle, this is not the angle. Okay, take the angle between B and C. अब B मेरा इस डायरेक्शन में है, C मेरा इस डायरेक्शन में है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, I'll just extend the B here, this will be my B. Now the angle between B and C is alpha. Now the angle between B and C is alpha, so this angle I'm going to take A by sine alpha. Same way, now my B is there, now the angle between सी एंड ए, सी को मैंने एक्सटेंड किया इधर, सो एंगल बिटवीन, मिनिमम एंगल बिटवीन सी एंड ए, टेल टू टेल कनेक्ट करने के बाद दिस इज माई बीटा, सो दिस एंगल इज माई बीटा, सो बी बाई साइन बीटा. सेम वे सी के अपोजिट में दिस एंगल इज माई साइन गामा, सो दिस एंगल वी आर गोइंग टू टेक. सो अगर मैं इसको, आई कैन पुट इट डाउन इन दिस फैशन ऑल्सो. ए मेरा ये हो गया, बी को मैंने ये पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, सी को मैंने पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, दिस सी आई पैरेलली शिफ्टेड हियर. सो नाउ आई कैन से ए के सामने वाला एंगल बी और सी के बीच में ये अल्फा हो गया, ए के सामने वाला एंगल मेरा अल्फा हो गया, बी के सामने वाला एंगल मेरा बीटा हो गया, सी के सामने वाला एंगल मेरा गामा हो गया. ठीक है, सो दैट ऑल्सो आई कैन रिप्रेजेंट इन दिस मैनर ऑल्सो. अदरवाइज वो ऐसे ट्रायंगल में दे रखा है तो आई हैव टू कंसिडर दिस एंगल ओनली. और अगर आपको ये वाले एंगल दे रखे हैं तो यू हैव टू take this angle only, so this angle will be 180 minus alpha, 180 minus inner angle, 180 minus inner angle, so this angle only you have to take. So this is how you can do. Okay, so if a and b is been equal, अगर मेरे को दे रखा है a और b equal है तो this angle will also be equal, alpha and beta will also be equal. I can take out the gamma from here and I can resolve this c also. इसी के बेसिस पे लाइक दिस सेट ऑफ क्वेश्चन ए इज इक्वल टू बी दे दिया तो ए इज इक्वल टू बी दे दिया, ए इज इक्वल टू बी देने के बाद नाउ दिस एंगल विल आल्सो बी इक्वल, ये एंगल इक्वल हो गए तो आई कैन यूज दिस लेमीज थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी एंड द गामा एंगल. सो दैट्स हाउ दैट सेट ऑफ क्वेश्चन आल्सो कैन कम, बट द लॉजिक इज क्लियर ना. सो एंगल, व्हाट एंगल वी हैव टू सी, बी और सी के बीच का एंगल. और एंगल कैसे देखते हैं हम, टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं पहले. सो बी ये हो गई, बी की टेल ये हो गई, सी की टेल ये हो गई, और इन दोनों के बीच में दो एंगल बन रहे हैं, एक ये और एक ये. वी ऑलवेज टेक द मिनिमम एंगल, नॉट द बिग एंगल. ओके, नाउ वील मूव टू द, we'll see some questions now. So first is, मेरे को दे रखे हैं 2 unit vectors. I've been given 2 unit vectors और मेरे को बोला गया है कि
जो इन दोनों का सम है दैट इज़ ऑल्सो यूनिट वेक्टर 1. सो आई हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू यूनिट वेक्टर. सेम वे अगर इन दोनों का डिफरेंस है वो भी यूनिट वेक्टर है, देन आई हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम. सो आई नो कि अगर दिस समेशन द रिजल्टेंट इन दोनों का क्या होता है, इफ़ वी हैव डन इन द एनालिटिकल मेथड, इट इज़ n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर प्लस 2n1 n2 cos थीटा. n1 1 है, ये भी 1 है और ये दोनों भी 1 है और दिस ऑल्सो 1. इफ़ आई ओपन इट अप I can get the value of cos theta. So 1 plus 1, this will be 2 plus 2 cos theta का under root is equals to 1. I'll take root 2 out, so 1 by root 2, 1 plus cos theta. So 1 plus cos theta. So cos theta I can find the value of cos theta. Same way here. इसका मुझे पता है analytical way कि how I find the resultant of this. Resultant magnitude of this is under root of n1 square का magnitude, n2 square का magnitude minus 2 n1 n2 cos theta. n1 is 1, this is 1, n1 n2, this is also 1, and this is also 1. Now I open it, this will be 1 plus 2 minus 2 cos theta. So यहाँ से मैंने 1 minus 2 कॉमन ले लिया, तो 1 by 2, sorry, this way. So I'll just solve it. So 1 is equals to under root of 1 plus 1 plus 2 cos theta. सेम वे नीचे वाला आ जाएगा under root of 1 plus 1 minus 2 cos theta. So I'll open it. So this will be 1 is equals to 2 plus 2 cos theta. So this is, take the 2 out, cos theta 1 by 2 cos theta, and minus 1 by 2 is cos theta. So minus 1 by 2 is minus 1 by 2 is what? Is 60 degree. Minus 1 by 2 is 60 degree. So this is my angle, 60 degree. 150 degree is my angle here. Okay. Same way इस वाले में देखेंगे, the angle will come. Same way I'll solve it and I'll get the value of cos theta. I'll get the value of theta. So now मेरे पास एक वेलोसिटी वेक्टर्स, एक पार्टिकल आ रहा है इस डायरेक्शन में जिसकी वेलोसिटी वेक्टर ये है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम दिस सरफेस इट इज़ गोइंग बैक इन दिस डायरेक्शन, और इन दोनों के बीच का एंगल इज सेम थीटा. ठीक है. सो नाउ आई विल ब्रेक डाउन दिस वेक्टर इनटू 2 कंपोनेंट. सो ये हॉरिजॉन्टली कितना मूव कर रहा है, वर्टिकली किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. हॉरिजॉन्टली इट इज़ कमिंग इट विद एन एंगल ऑफ v1 sin थीटा, एंड vertically it is coming as v1 cos theta, and it is going back with v2 sin theta. Sorry, it is coming with this v1 sin theta and it is going back with v2 sin theta, और यहाँ पे ये आ रहा है v1 cos theta and it is going back with v2 cos theta. ठीक है. So I'll put it in this way, v1 sin theta I plus v1 cos theta j, this and this. Now my change in momentum will be final mv2 minus mv1. This is my change in momentum. I just put the value here of v1 and v2, and after putting this value I've got minus 2 v cos theta, because इस direction में same रहेगी मेरी, and this only got changed. So I've got, because v1 and v2 is also same, v1 v2 given है, so this will get cancelled. So now final will be इस direction में आ रहा था and it has gone back to the opposite direction. Okay, so minus 2 cos theta is my, minus 2v cos theta is my change in momentum. Now the next topic is product of two vectors. So product of two vector का I'll just give you an intuition in this lecture and we'll do a bit of scalar product. So product of two vector क्या होता है ना, scalar product क्या होता है. Scalar product is tell you how much one vector will help other in move, how much one vector in help another vector in move. Suppose ये मेरा b vector है, ये मेरा a vector है. ठीक है. अब a vector b vector को इस डायरेक्शन में कितना हेल्प करेगा मूव करने के लिए. ठीक है. ए वेक्टर बी वेक्टर को इस डायरेक्शन में कितना मूव करेगा, कितना हेल्प करेगा मूव करने के लिए. सो जितना ये ए वेक्टर बी को हेल्प करेगा इतना बी को इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए आई नीड टू नो द ए का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ना. सो इट विल बी ए कॉस थीटा
ये इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट. सो ए वेक्टर का जो ए cos थीटा कंपोनेंट है दैट इज गोइंग टू हेल्प द बी वेक्टर टू मूव इन द दिस डायरेक्शन, टू मूव इन दिस डायरेक्शन. सो दैट इज व्हाट द इंट्यूशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट के एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को उस डायरेक्शन में, अपने उस डायरेक्शन में बी के डायरेक्शन में, सपोज एक प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर को कितना हेल्प करेगा मूव करने में, कितना कंट्रीब्यूट करेगा उसको मूव करने में, दैट इज़ व्हाट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट. और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर को कितना ट्राइज टू रोटेट करेगा, कितना रोटेट करने की कोशिश करेगा. सपोज ये ए वेक्टर है, ये बी को कितना रोटेट करने की कोशिश करेगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल अ क्रॉस प्रोडक्ट. अब रोटेशन जो, सपोज ये पार्टिकल है, इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. इफ़ आई अप्लाई अ फोर्स हेयर, ठीक है, तो ये फोर्स मैंने अप्लाई की, इसके दो रिजल्टेंट हो गए. वन इज़ द हेयर एफ कॉस थीटा एंड हेयर इज़ एफ साइन थीटा, ठीक है. और मुझे पता है ये एफ कॉस थीटा इसको, इस पार्टिकल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ा देगा, और एफ साइन थीटा क्या करेगा ना, इसका एंगल चेंज करेगा, इसको एंगल चेंज करता रहेगा इसका एफ साइन थीटा, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स is going to change the direction, is going to change the angle. So जितना इसको जो vertical component है that is only trying to rotate, this f sin theta is trying to rotate this particle. f cos theta उसको contribute करेगा अपनी direction में move करने के लिए, ठीक है. तो vertical component of any vector, तो इसका जो है a vector का vertical component जो होगा ये होगा a sin theta, जो इसका vertical component होगा that is going to, जो इस डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज गोइंग टू हेल्प इन रोटेटिंग द बी वेक्टर. ओके, सो हियर व्हाट इज रिटन कि स्केलर प्रोडक्ट इज हाउ मच वन वेक्टर हेल्प द अदर वेक्टर इन मूव इन इट्स डायरेक्शन एंड हाउ मच वन वेक्टर ट्राइज टू रोटेट द अदर वेक्टर, ठीक है. तो एक एग्जांपल से देखते हैं. सपोज मेरे पास ये ब्लॉक रखा हुआ है मेरा, और मैंने इस पर फोर्स लगाई F, ठीक है. यहाँ पे मेरी हो गई F cos थीटा एंड F sin थीटा. F cos theta is the component of vector which is helping it moving this r vector in this direction, ठीक है. तो F cos theta is along this direction, so that is helping it. Okay, so if we do a dot product of that, this is a dot product, scalar product. Now if I take this block and I apply a force here and it tends to rotate. अब इस ये force कितना rotate कर सकती है, that is it's the vertical this r vector से, ठीक है. Here एफ कॉस थीटा कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इसको इधर मूव कराने में, दिस इज माई एस वेक्टर एंड एफ कॉस थीटा इज अलोंग दिस डायरेक्शन, दैट इज व्हाट वी कॉल द वर्क ऑल्सो एफ डॉट एस दैट वी आर गोइंग टू सी. अनदर थिंग इज कि अगर ये ब्लॉक रखा हुआ है एंड हेयर एक हिंज है और मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, टेंड्स टू रोटेट, ठीक है. अब रोटेशन क्या होगा, हमेशा वर्टिकल. तो ये जो एंगल है, ये जो मेरा वेक्टर है, दिस इज आर वेक्टर, और इसके परपेंडिकुलर में इसके वर्टिकल में कितना फोर्स लग रहा है एफ. सो नाउ दिस फोर्स इज टेंडिंग टू रोटेट दिस r vector, कितना tends to rotate है. so now this is what we call a torque r cross f. so क्रॉस प्रोडक्ट उसको उसी की डायरेक्शन में मूव करने में कितना हेल्प कर रहा है, और क्रॉस प्रोडक्ट उसको वेक्टर को रोटेट करने में कितना हेल्प करेगा, दैट इज व्हाट वी कॉल अ क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, सो टेंडेंसी टू रोटेट इज माई क्रॉस प्रोडक्ट से आएगी, और उसको उस डायरेक्शन में मूव कराने के लिए जो मेरा हेल्प करेगा दैट इज़ फ्रॉम द स्केलर प्रोडक्ट. ओके, स्केलर प्रोडक्ट इज वी हैव सीन इट इन वर्क, पावर एंड फ्लक्स. सो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए डॉट बी. सो मतलब ए डॉट बी को अगर मैं ओपन अप करूँगा तो आई गॉट कि ए का कितना कंपोनेंट बी को हेल्प करेगा. ए का कंपोनेंट सपोज मेरा आ गया ए कॉस थीटा, इट इज़ हेल्पिंग बी, ठीक है. सो ए कॉस थीटा कंपोनेंट ओनली इज हेल्पिंग बी. सो अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो दैट विल बी ए डॉट बी कॉस थीटा, दिस इज माई ए डॉट बी. सेम वे बी का कितना कंपोनेंट ए को हेल्प कर रहा है, या ए का कितना कंपोनेंट बी को हेल्प कर रहा है, ठीक है. सो अलॉन्ग दैट बीज डायरेक्शन, सो दैट इज व्हाट वी कॉल अ स्केलर प्रोडक्ट. सो स्केलर प्रोडक्ट ये आ गया मेरा ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा. सो सपोज मेरा ए वेक्टर ये है एंड बी वेक्टर ये है, ठीक है. Now I have to see the angle के लिए मेरे को टेल टू टेल कनेक्ट करना है. I'll shift this b vector from here to here. This is my theta. So now how much a is helping, how much b is helping a. So b का अगर मैं देखूँ b cos theta, it will be coming in this direction. So b is in the negative direction. b is not helping, in fact reducing the effect of a. अगर b इसी डायरेक्शन में होता तो it is going to help in the positive manner. अगर b ऐसे है
और ए ऐसे है, ठीक है। तो अगर बी का मैं कंपोनेंट लूँगा, इट इज़ कमिंग इन दिस डायरेक्शन, और वर्टिकल कंपोनेंट ये, तो जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस थीटा आएगा, दैट इज़ not helping, which is it is in a negative, it is reducing the effect of a. अगर और ये मेरा जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट, दैट इज नॉट helping anything in the component of a, so that is zero, this component is not helping. अगर मेरा b ऐसे दिया होता और a ऐसे है, so now I'm not having any component of b on a which is helping, ठीक है। कोई भी कंपोनेंट ऑफ बी नहीं है ही का जो भी हेल्प करेगा। हेल्प का मतलब ये नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव बोथ डायरेक्शन में। अगर बी इधर होगा तो इट इज़ गोइंग टू हेल्प ए, अगर बी इधर होगा तो इट इज़ गोइंग टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ ए। तो डोन में अगर ये मेरा परपेंडिकुलर है, देन दैट मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प ए इन एनी वे, द बी वेक्टर इज नॉट गोइंग टू हेल्प ए वेक्टर इन एनी वे. So same way we have represented here, if the theta is 90 degree, so angle between A and B is 90 degree. So here I have seen कि B कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई कंपोनेंट नहीं आ रहा है A की डायरेक्शन में, so that is 0. So 0, theta 90 degree, C will be 0. Now अगर theta 0 हो जाएगा, अगर ये पूरा ऐसे हो गया B, so that is B का सारा कंपोनेंट पूरा का पूरा B हेल्प कर रहा है A में, तो this is A plus A dot B हो जाएगा पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा कंपोनेंट, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू. अगर ए मेरा पूरा का पूरा अपोजिट साइड में आ गया, ये मेरा बी हो गया, तो ये पूरा का पूरा बी जो है अपोज कर रहा है ए को, दैट इज़ मिनिमम वैल्यू ए डॉट बी. ओके, दैट्स हाउ द स्केलर प्रोडक्ट वर्क. नाउ विल सी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर मुझे पता है क्या होता है. अगर मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड दिस इज माई जेड एक्सिस, इसमें आई इज़ माई यूनिट वेक्टर, इसमें जे इज़ माई यूनिट वेक्टर, इसमें के इज़ माई यूनिट वेक्टर, ठीक है. तो आई का अब आई हैव टू सी के यूनिट वेक्टर आई डॉट आई देखना है, तो दैट इज़ यूनिट वेक्टर 1 into 1, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा. कॉस थीटा इज 0, I put this 0 degree, so cos theta 0 degree is 1, so I dot I is my 1, so I dot I is 1, J dot J is 1, K dot K is 1. okay, but I dot J का कोई भी कंपोनेंट I की तरफ नहीं है, I dot J is 0, जितना भी I dot J is 0, J dot K dot I, everything is 0, but along the direction अगर मैं करूँगा तो that is giving me I dot I1, J dot J1, K dot K is 1. So again the same dot product is commutative. अगर मैं A dot B करूँ या B dot A करूँ, it is giving me the same result, and they are also distributive. कि पहले मैं दो वेक्टर को ऐड करूँ, then I do the dot product, and then if I open it up, it will be in this order, A dot B, A dot C, और मैं किसी भी ऑर्डर में करूँ A dot C या A dot B, it is going to give me the same result. This we have seen, dot product of a perpendicular vector is 0, that we have seen it here. Dot product of a perpendicular vector is this is B, this is A. तो B का कोई भी कंपोनेंट हेल्प नहीं कर रहा है A को, so that is 0, or otherwise from the formula also we have seen A dot B cos theta की वैल्यू मेरी 90 degree 0, so my A dot B coming to be 0, and dot product of a vector itself is the magnitude square. So dot product of a vector itself means A dot A, मतलब A का वेक्टर सेम A के वेक्टर को कितना हेल्प करेगा. So A का वेक्टर A के वेक्टर को कितना हेल्प करेगा, ये पूरा 100% हेल्प करेगा, तो A डॉट A मेरा A डॉट A कितना हो जाएगा, A स्क्वायर, बिकॉज द थीटा इज 0 डिग्री, सो दोनों का मॉड स्क्वायर हो जाएगा. सो दो वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी द मैग्नीट्यूड स्क्वायर. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि एनालिटिकल क्वेश्चंस में काफ़ी यूज़ होती है, कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर विद इटसेल्फ, it's going to give me the magnitude square. Dot product of any two vector itself, it's going to give me the magnitude of that product square. So we'll see an example of this, कि हमने ऑलरेडी ये डिराइव किया हुआ है इक्वेशन, कि अगर मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर है मेरा p प्लस q, अब मेरे को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, सो मैग्नीट्यूड p प्लस q का मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है. मैग्नीट्यूड निकालने का मेरे को वी हैव सीन इन द एनालिटिकल वे फॉर्मूला इज दिस वन. सो अब इसको हम इस तरीके से निकालेंगे ए डॉट ए. इस मेरे को पता है कि इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू p प्लस q का p प्लस q के साथ डॉट प्रोडक्ट, p प्लस q के साथ डॉट प्रोडक्ट. दैट इज़ व्हाट वी हैव डन, एंड व्हेन वी डू अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस, वी ओपन इट, p डॉट p आपस में डॉट प्रोडक्ट इज व्हाट, मैग्नीट्यूड स्क्वायर, p डॉट q
I've written down here P dot Q is PQ cos theta, QP PQ cos theta, and Q का Q के साथ dot product is giving me this. So we have reached this answer from this condition, this very important condition, this one. कि दो वेक्टर का आपस में अगर मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूँ तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी द मैग्नीट्यूड स्क्वायर. ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. इसके बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इफ़ आई हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. ये ए दे रखा है, दिस इज माई बी, एंड आई हैव टू फाइंड दिस एंगल थीटा. ठीक है, तो मेरे को पता है ए डॉट वी वेक्टर क्या होता है. A, B, cos theta. Now if I have to find out this cos theta, I'll just take this A and B here in the denominator, I'll get it. So cos theta between any two vector. This is also very important property that has been used in many of the questions. कि किसी भी दो वेक्टर के बीच में अगर मेरे को एंगल निकालना है तो आई यूज़ दिस प्रॉपर्टी अ लॉट. कि कैसे निकालते हैं? आई टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर एंड आई डिवाइडेड बाय their magnitude multiplication. ठीक है, I take the dot product of these two vector and divide it by their magnitude. ठीक है, so this is also very important property. ये बहुत जगह यूज़ होगा हमारा जब भी हमारे को एंगल निकालना होगा दो वेक्टर्स के बीच में. विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर विल सी सर्टेन एग्जांपल्स के जहाँ पे हमारे को एंगल पूछा गया है दो वेक्टर्स के बीच में. सो विल यूज़ दिस प्रॉपर्टी अ लॉट कि दोनों वेक्टर का पहले मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा, उसके बाद उन दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँगा एंड आई विल गेट द एंगल कॉस थीटा एंगल. ठीक है, नेक्स्ट इज कि अगर मेरे को दे रखा है कि रिजल्टेंट इज ए प्लस बी. ठीक है, इसका ए प्लस बी का मॉड इज इक्वल्स टू ए माइनस बी का मॉड. तो मुझे पता है कि अगर ए ये है बी ये है तो ए प्लस बी इज माई बिगर डायगनल एंड ए माइनस बी इज माई स्मॉलर डायगनल. दिस इज ए माइनस बी एंड दिस इज ए प्लस बी. अब ये दोनों मुझे पता है. इफ आई हैव बीन गिवन ये दोनों की लेंथ मेरी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. दैट कैन ओनली हैपन जब ये स्क्वायर बनेगा ऐसे. दैट कैन ओनली हैपन इन दिस वे. जब ये स्क्वायर बनेगा देन ओनली दीज टू आर इक्वल, अदरवाइज इट विल नॉट बी इक्वल. और ये स्क्वायर कब बनेगा? व्हेन आई एम हैविंग दिस एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. ठीक है, अगर कोई और भी एंगल किसी भी एंगल पे होगा तो ऑब्वियसली वन डायगनल इज बिगर देन अदर डायगनल. ठीक है, दिस डायगनल विल बी बिगर देन दिस डायगनल. सो दिस ए प्लस बी इज बिगर देन ए माइनस बी. बट मेरे को अगर क्वेश्चन में दिया गया है कि मेरा ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड सम ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी और ए माइनस बी के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हैं. दैट मीन्स ये डायगनल और ये डायगनल इक्वल केवल एक ही केस में आएगा व्हेन आई मेक दिस अ स्क्वायर. जब मेरा ये स्क्वायर बन जाएगा देन ओनली आई विल बी हैविंग इट. स्क्वायर बन जाएगा देन दिस इज ए प्लस बी, दिस इज ए माइनस बी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज माई ए प्लस बी एंड दिस विल बी माई ए माइनस बी. अब इस केस में ही ओनली इन दोनों के रिजल्टेंट सेम होंगे, डायरेक्शन सेम नहीं होगी, इन दोनों के रिजल्टेंट सेम होंगे. ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम होगा इसी केस में. ठीक है, जब ये एंगल दोनों का 90 डिग्री है. दैट इज़ व्हाट वी हैव बीन आस्क्ड. सो को एनालिटिकली कैसे सॉल्व किया है, आई नो दिस थिंग. अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले लूँगा दैट इज़ आपस में डॉट प्रोडक्ट दोनों का, तो मैंने ये कर दिया, पहले इसको स्क्वायर दोनों साइड कर दिया एंड आई हैव टेकन अ डॉट प्रोडक्ट बोथ द साइड्स एंड फाइनली आई हैव रीच दिस cos थीटा इज इक्वल टू ए. इसको मैंने ओपन किया तो 4 ए डॉट बी इज इक्वल टू 0. ए डॉट बी 0 कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है. ये एनालिटिकली सॉल्व कर लिया. सेकंड में मेरा क्या है कि अगर मेरे को ये दे रखा है ए प्लस बी इंटू ए डॉट बी 0 है. ठीक है, देन आई हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी. तो यहाँ पे मेरे को दे रखा है ए डॉट बी और ये. ठीक है, ए डॉट बी एंड ए माइनस बी. तो ये डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का 0 है. दैट मीन्स इन दोनों के बीच में एंगल इज माई 90 डिग्री. सो पहले लो this 90 degree can only happen when this A is equals to B, when this is a rhombus or a square होगा तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री भी होगा और ये दोनों भी इक्वल होंगे, इन दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा. बट अगर यहाँ पे मेरे को मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है बट द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री देन ऑब्वियसली
दिस शुड बी अ रोम्बस एंड ए शुड बी इक्वल टू बी। और यहाँ पे हमने एनालिटिकली भी देखा कि वी जस्ट ओपन इट अप, डॉट प्रोडक्ट को जस्ट ओपन द डॉट प्रोडक्ट, ए स्क्वायर माइनस बी ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे को फाइनल हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड आई ओपन इट एंड आई गॉट ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, सो दिस वे we have seen analytically also and in the figure also कि how if we are having the mod of a plus b is equals to mod of a minus b, तो वो case, that case is of square only, square a is equals to b side a is, that is the case of square only, तभी मेरे दोनों डायगोनल सेम होंगे। और इस केस में हमने देखा अगर दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो we can have the square also and rhombus also। एंड दिस प्रॉपर्टी वी हैव सीन कि दो, अगर मेरा दो एंगल दे रखे, दो मेरे पास वेक्टर दे रखे हैं ए एंड बी, उन दोनों के बीच का एंगल निकालना है तो वी विल ऑलवेज यूज़ दिस प्रॉपर्टी कि पहले मैं डॉट प्रोडक्ट लूँगा उन दोनों का एंड देन डिवाइड बाय देम विद देयर मैग्नीट्यूड्स। सो आई थिंक वी हैव फिनिश्ड लेक्चर नंबर 2 ऑफ वेक्टर्स। सो लेक्चर नंबर 2 में वी हैव कवर्ड अप all the things, we have covered up unit vectors, देख लिया हम लोगों ने what are unit vectors, how it has been used, कि जब हमें डायरेक्शन चाहिए होती we don't worry about the magnitude, we use the unit vector। we have seen the component of vectors, किस तरीके से वेक्टर को आप डिफरेंट एक्सेस में along their axis उसके components break करते हैं to resolve the problems। then we have seen the direction cosine, we have seen the position vector and the displacement vector। position vector is always with respect to origin and displacement vector is always with respect to some other vector। we have seen the Lami's theorem, अगर तीन वेक्टर्स मेरे इन द साइक्लिकल मैनर है और इन तीनों का जो सम है, वेक्टर सम है, दैट इज 0, देन आई अप्लाई, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल, सो दैट वी हैव सीन। देन वी हैव सीन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, स्केलर होता है, क्रॉस होता है। स्केलर प्रोडक्ट क्या करता है? स्केलर प्रोडक्ट इज गोइंग टू हेल्प वन टू वेक्टर्स के बीच में स्केलर प्रोडक्ट का मतलब है कि वन वेक्टर इज हेल्पिंग अदर वेक्टर in moving in the vectors direction। and क्रॉस प्रोडक्ट होता है कि टू वेक्टर्स हैं एंड बी, तो ए क्रॉस बी का मतलब है कि हाउ मच ए वेक्टर इज टेंडिंग टू रोटेट द बी वेक्टर, कि उसमें कितना दैट इज टेंडिंग टू रोटेट द बी वेक्टर। द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन इज कमिंग अप फ्रॉम द क्रॉस वेक्टर, दैट इज वी आर गेटिंग इट फ्रॉम द परपेंडिकुलर साइड ओनली, परपेंडिकुलर component, and along the side component is the horizontal component, cos theta component, that is what we are going to get in the scalar product। so this is all we have seen today, we have seen the angle between the scalar product। so this is all for today in the lecture number 2। lecture number 3 हम लोग cover करेंगे cross product and we are going to see some questions on the basis of vectors। okay, all right, thank you।